Hello everyone. We were talking about flowering parts of flowering plant. Now we will discuss about some semi-technical description of a flowering plant, which are used to explain a family. So there are some symbols for representing flower description. First is bractet. Bractet means a flower is having ब्रैकेट. ब्रैकेट क्या होता है कि कोई भी जो फ्लावर है तो ये एक फ्लावर है और यहाँ पर ये सेपल्स, ये है पेटियोल. तो जो पेटियोल का जो बेस होगा, पेटियोल पर ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट. ये पेटियोल पर प्रेजेंट होगी. इफ पेटियोल इज हैविंग ब्रैकेट देन फ्लावर इज सेड टू बी ब्रैक्टेट एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज BR. And flower is without bracket is called ebractet. Ebractet. It represents as EBR when flower is without bracket. Next is actinomorphic. When flower is having radial symmetry. Suppose this is flower, ये petals. अगर इसे प्लेन से कट करें, अगर हम मोर देन वन प्लेन कट करें फ्लावर को, each part is similar to another part. That is called radial symmetry and flower is said to be actinomorphic. It is represented as plus sign in circle form. This is actinomorphic. Zygomorphic, when flower is having bilateral symmetry. Suppose flower axis is cut only at one plane. Right and left part are similar. Flower is having bilateral symmetry. Represented as percent sign. Percentage sign. Calyx means group of sepals. Group of sepals represented as K. Calyx. ठीक है. Corolla means group of petal and group of petal represent as capital C. Now other parts. Group of tepal is called perianth. Perianth represent as capital P. Next is androecium. Group of stamen is called androecium and it is represented as capital A. Group of carpel, female reproductive part, that is called gynoecium, and gynoecium or female reproductive part represent as G. When flower is having only male reproductive part, flower is said to be male flower and male flower is represented as this sign. Female flower, when flower is having only female reproductive part, then it is represented as circle and below plus sign. When flower is having both, means one flower is having both reproductive organs, male as well as female, then flower is said to be bisexual. Then this sign, male sign and female sign, it is called bisexual. When ovary is superior in flower, ovary is superior in flower, तब ओवरी सुपीरियर है और ओवरी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? G से.
अब ओवरी को सुपीरियर शो करने के लिए अगर इसके बिलो हम लाइन ड्रॉ कर दें, वन लाइन इज ड्रॉ बिलो द जी, देन ये साइन क्या हो रहा है, इसमें जी अपर है और लाइन बिलो हो गई, तो ओवरी क्या हो रही है, सुपीरियर है with respect to this line. So ovary is superior, then line is drawn below the G. When ovary is inferior, line draw above the G. Clear? By using these signs we will describe three family. First is Fabaceae. Fabaceae is also known as P family. Members of P family of Fabaceae present all over the world. We will describe first vegetative character. Vegetative character means root, stem, leaves कि किस टाइप की रूट है, स्टेम किस किस टाइप की है, एंड लीव्स. तो इसमें जो फेबेसी में तीनों ही टाइप के प्लांट टाइप हैं, यानी ट्री भी होते हैं, ट्री भी है, श्रब्स भी होते हैं एंड हर्ब्स भी हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम कि लॉन्ग टॉल इज कंसिडर्ड एज ट्री, श्रब जो होते हैं वो कुछ मीटर्स लॉन्ग होते हैं, और हर्ब्स होते हैं जिनका स्टेम भी ग्रीन होता है और लेंथ ज़्यादा नहीं होती है. फॉर एग्जांपल क्लाइंबर्स. अब यहाँ पर इसमें एक स्पेशल पॉइंट है पी फैमिली में कि इनकी जो रूट्स होगी, एक तो इनकी रूट देखिए, अगर हम फर्स्ट टाइप, तो रूट किस टाइप की होगी, टैप रूट. क्लियर? बट इनकी रूट में, यानी ये जो फेबेसी जो फैमिली है, फेबेसी फैमिली, इनकी रूट्स में एक स्पेशल बैक्टीरिया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरियम क्या करता है, ये रूट्स के साथ में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, यानी रूट में ट्यूमर्स बनती हैं इस तरह से. रूट इस तरह से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है. ये नोड्यूल फॉर्मेशन का यूज़ क्या होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. प्लांट्स कांट एब्जॉर्ब फ्री नाइट्रोजन, बट विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, अमोनियम, नाइट्राइट, नाइट्रेट. Clear? So this is special features of only Fabaceae of P family. The plant root of Fabaceae is having rhizobium bacteria which helps in nodule formation. There nitrogen fixation takes place and plant can absorb nitrogenous compound such as nitrite, nitrate. Next is which type of stem is found in Fabaceae. ग्रीन भी हो सकता है और वुडी, सॉलिड और होलो, एंड इन क्लाइंबर फॉर्म. यानी इसमें तीनों ही टाइप के अगर हम देखें वैरायटी है, ट्री भी होते हैं इस प्लांट में, जैसे बबूल, इसमें हो जाएगा, ट्री में आ जाएगा स्ट्रेट ट्री जो होता है, खेजड़ी, वो इसी में ही है. श्रब देखें तो बबूल, और हर्ब्स देखें तो हम पी, ग्राउंडनट, ये क्या है, हर्ब्स. तो तीनों ही तरह के हैं. तो उनमें स्टेम अगर हम देखें कि इनमें ग्रीन होता है तो इनमें वुडी होगा, इनमें अगर होलो अगर स्टेम है तो इनमें सॉलिड होगा, और पी जो होते हैं ग्राउंडनरी, पी क्लाइंबर फॉर्म में है. तो वो ऑल जो प्लांट्स हैं उनकी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए हम ये डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट है लीव्स. लीव्स किस फॉर्म की होती हैं, अल्टरनेट. अल्टरनेट मीन्स कि ये स्टेम है तो इनमें लीव्स का अरेंजमेंट इस तरह से होगा, अल्टरनेट, लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट इज सिंपल और कंपाउंड. सिंपल का मीनिंग है कि डायरेक्ट ही अगर एक्सिस से लीव्स लग रही है, फॉर एग्जाम्पल पी. कंपाउंड मीन्स व्हेन leaves is found in small leaflets. Yes, बबूल, खेजड़ी, रबर,
इनमें क्या होता है, कंपाउंड लीव्स होती हैं, स्मॉल लीफलेट्स होते हैं. पिन्नेट मीन्स इस शेप की होती हैं लीव्स, और पामेट शेप की भी होती हैं इनमें. स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट मीन्स है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ होती है उसके बेस पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ये स्टेम है, ये लीव, और लीव्स के यहाँ पर ये जो, ये तो है पेटियोल, और पेटियोल के बेस पर यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल. व्हेन प्लांट इज हैविंग स्टिप्यूल स्ट्रक्चर, दे आर सेड टू बी एज स्टिप्यूलेट. वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट, यानी इसमें जो वेन्स होंगी दे मेक नेटवर्क, रेटिकुलेट वेनेशन. नाउ वी विल सी reproductive features or floral features, floral characters. फ्लोरल करेक्टर में फर्स्ट फीचर है इन्फ्लोरेसेंस. देखिए इनका जो सीक्वेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. वेजिटेटिव करेक्टर हमने फर्स्ट हम वेजिटेटिव करेक्टर एक्सप्लेन करते हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स. देन फ्लोरल करेक्टर में फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे इन्फ्लोरेसेंस, यानी विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन पर्टिकुलर प्लांट. नाउ इन पी फैमिली देर इज रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट. Inflorescence, racemose means continuous growth. Next is flower. Flower is having both sex organ, so it is bisexual. Complete means flower is having all holes. कौन कौन से, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यानी कंप्लीट है, उसमें ऑल पार्ट्स हैं, एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल. सो फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट. ज़ाइगोमॉर्फिक, फ्लावर इज हैविंग बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल मीन्स दिस इज फ्लावर, व्हेन वन प्लेन से इसे कट किया, राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज सिमिलर, यानी वी कैन कट एट वन प्लेन. कैलिक्स, कैलिक्स मीन्स ग्रुप ऑफ सेपल्स. अब यहाँ पर एक वर्ड हमने मिस कर दिया, पेंटामेरस. इसमें फ्लावर में क्या डिस्क्राइब करना है हमें, पेंटामेरस. पेंटामेरस मीन्स हो गया व्हेन फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ 5 और इट्स मल्टीपल. तो पेंटामेरस है, यानी इसमें जो सेपल्स, पेटल्स, इनका नंबर क्या होगा, 5. तो कैलिक्स की बात करते हैं तो सेपल क्या है, नंबर ऑफ सेपल 5. अब इसमें जो एस्टिवेशन है, सेपल्स का जो अरेंजमेंट है वो है इम्ब्रिकेट टाइप का. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या मीनिंग होता है. अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देखना. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मीन्स है कि अगर 5 सेपल्स है, 5 सेपल्स हैं, तो उनमें से एक तो कम्प्लीटली इनसाइड है, वन इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड, यानी ओवरलैपिंग हो रही है इसमें. वन, 2, 3, 4 and 5. See, this sepal is completely inside. This is alternatively, one margin is outside and one margin is inside. This is completely outside, it was completely inside. Say 1, 2, 3. और यहाँ पे देखिए ये क्या है, alternate. One margin is inside and one margin is outside, यानी overlapping हो रही है. Overlapping in not in particular direction. When overlapping occurs
randomly, that is called imbricate estivation. But we can remember that one is complete, one sepals or petal is completely inside, यानी उसके margin क्या होंगे inside, and one is completely outside, and remaining are in alternate pattern, यानी one inside outside, outside inside, inside outside, inside outside. तो हो गए 5 sepals. तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. पेटल्स के लिए तो हम इस तरह से कर्व यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल शेप भी आ जाए. फ्लोरल डायग्राम में और एक्सप्लेन करेंगे हम ये. नेक्स्ट टर्म है गैमोसेपलस. देखिए गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड, यानी इसमें जो सेपल्स हैं दे आर यूनाइटेड, फ्यूज्ड है. नेक्स्ट इज कोरोला. कोरोला मीन्स ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड पेंटामेरस प्लांट तो नंबर ऑफ पेटल इज 5. पॉलीपेटलस ऑल पेटल्स आर फ्री. एंड एस्टिवेशन में बताया था कि पी फैमिली में किस टाइप का एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन. वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है कि एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड पेटल होता है लार्ज, which overlaps lateral petals, that is called wings, and these lateral petals overlap anterior petals, but they are fused, and these it is called standard petal. This is wing, these are wings, and these are keel. So you will see one standard petal, 2 wings and 2 keel, but keel are fused, so we will write bracket. जब कोई भी इसमें फ्यूज होता है कोई भी फ्लोरल पार्ट, तो हम क्या करते हैं, उसके नंबर के आगे हम ब्रैकेट लगा देते हैं. इट मीन्स दे आर फ्यूज. जब हम फ्लोरल करेक्टर्स को या वेजिटेटिव करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं तो हम टेक्निकल टर्म को हम वहाँ पर उनका मीनिंग नहीं लिखते. आप यहाँ देखोगे मैंने लिखा है सेपल्स 5 इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन गैमोसेपलर, दैट्स इट. अब ऐसा नहीं कि आप इम्ब्रिकेट को एक्सप्लेन करेंगे या गैमोसेपलस का मीनिंग लिखेंगे, नो, सॉरी, एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पर ये क्या है, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज होती है टू डिस्क्राइब वो फैमिली. अब यहाँ पर देखिए कि इट कंसिस्ट ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स एंड फ्यूज्ड कील. सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन. यू कैन राइट ओनली वैक्सिलरी एस्टिवेशन, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अभी आपको लिखा है. और आप ऐसे भी नहीं लेबल कर सकते हैं कि जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो हम इसे लेबल नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट ही हम ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. नेक्स्ट एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टैमन यानी ग्रुप ऑफ स्टैमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, और पी फैमिली में 10 स्टैमन्स हैं. बट डाईएडल्फस मीन्स स्टैमन्स आर फाउंड इन 2 ग्रुप्स. डाईएडल्फस means single and 9 are fused. So we can say 1 plus 9 arrangement. So 9 are fused, so 9 will be written as bracket. Next is gynoecium, monocarpellary. P family is having single carpel, so it is monocarpellary. Unilocular means having single locule. जैसे अगर हम पी का हम देखें, फ्रूट है, ये जो ओवरी इस तरह की होती है और इस तरह से इसमें ओवियल होते हैं. तो आप देखोगे कि कोई भी ऐसे सेपरेशन नहीं है, सिंगल है. ये जो है ये स्पेस है, ये सिंगल है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है. तो हम कहेंगे कि लॉक्यूल क्या है, 1 है, 1 लॉक्यूल. सो इट इज सेड टू बी यूनिलॉक्यूलर.
यूनिलॉक्यूलर। बट ओव्यूल जो है सिंगल लॉक्यूल में मैनी ओव्यूल्स, और ओवरी इसमें कैसी होती है, सुपीरियर। और पी में आपको याद है कि प्लेसेंटेशन किस टाइप का था, प्लेसेंटेशन मार्जिनल प्लेसेंटेशन। Marginal placentation means कि ovules are present at the one margin of ovary wall. तो यहाँ पर ये क्या सीक्वेंस फिक्स हो गया कि फर्स्ट कैलिक्स, कोरोला, देन एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नाउ फ्रूट इज लेग्यूम टाइप। लेग्यूम मीन्स जैसे बीन्स जो होती हैं शेप, जैसे ग्राउंड नट्स हैं, अदर बीन्स हैं, दे आर प्लेस्ड इन फेवेसी फैमिली। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड लेग्यूम, चाहे वो पी है, बीन्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं। अब जितने भी ऐसे प्लांट देखेंगे जिनमें इस तरह से सीड्स होंगे वन साइड ही, दे ऑल आर लेग्यूम प्लांट्स। तो फ्रूट इज लेग्यूम। एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो हमको सीड्स के बारे में इसमें डिस्क्राइब करने की ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, सो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं फ्रूट तक। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है फ्लोरल फार्मूला। कि अगर कोई भी हम फैमिली एक्सप्लेन करते हैं तो उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो 1 मार्क का तो इसमें फ्लोरल फार्मूला ही होता है, तो यू कांट स्किप इट। फ्लोरल फार्मूला में हम फर्स्ट बताते हैं कि प्लांट्स में किस तरह की सिमेट्री है, या फिर हम सबसे पहले बताते हैं कि फ्लावर जो है वो ब्रैकेट है या विदाउट ब्रैकेट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये बताते हैं ब्रैकेट है या विदाउट ब्रैकेट है। फिर नेक्स्ट आता है कि उसमें सिमेट्री कौन सी है। अब पी में कैसी सिमेट्री थी, जाइगोमॉर्फिक था ये, तो किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज साइन से। फिर नेक्स्ट बायसेक्सुअल है। फिर आता है कैलिक्स। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। एंड नंबर ऑफ सेपल वाज कितने थे, 5। ऑल आर फ्यूज, तो फ्यूज के लिए हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट, यानी गैमोसेपलस से। देन कैलिक्स, कैलिक्स में एक स्पेशल एस्टिवेशन था, कोरोला। नेक्स्ट इज कोरोला। कोरोला में स्पेशल एस्टिवेशन था, क्या था, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। 1 इज स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स एंड 2 फ्यूज कील। तो कील ही फ्यूज थे, तो हमने यहाँ पर इसे ब्रैकेट में शो किया। फिर नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कैसा था, 1 + 9। 9 जो स्टेमन थे दे आर फ्यूज, तो हमने 9 में इस तरह से ब्रैकेट लगाया। देन गाइनोशियम, मोनोकार्पिलेरी है तो हमने लिख दिया 1। अब 1 जो है वो फ्यूज तो हो नहीं सकती, 1 क्या है, सेपरेट है। बट ओवरी कैसी है, सुपीरियर। तो ओवरी को सुपीरियर रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऑलवेज ड्रॉ लाइन अबव द जी। तो यहाँ पे हमने इसके लिख दिया। अब इसके मेंबर्स की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली तो है पी, रबर, बबूल, ग्राउंडनट, बीन्स, पल्सेस, यानी जितने भी बीन्स हैं, किडनी बीन्स और ग्राम, ये सब किस में आएंगे, पी फैमिली में, यानी ये इट इज हैविंग मैनी varieties of plant. Now last is floral diagram. फ्लोरल डायग्राम जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका सेंटर पार्ट, हम ड्रॉ करते हैं कि सबसे पहले जो इनर पार्ट जो आता है, मैंने इनर मोस्ट में हम गाइनोशियम ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या था, यूनिलॉक्यूलर। तो यूनिलॉक्यूलर में सिंगल हमने क्या बना दिया, लॉक्यूल। अब उसमें इनका मार्जिनल एस्टिवेशन था, यानी 1 साइड ऑफ
ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है, ये बन गया ओव्यूल। फिर नेक्स्ट बात हुई थी कि अब गाइनोशियम हो गया, गाइनोशियम के आउटसाइड क्या होगा, स्टेमन्स। और नंबर ऑफ स्टेमन कितने थे इसमें, 9। 1 तो सिंगल है, 1 तो सिंगल बना दिया हमने, ये एंड्रोशियम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और 9 क्या है, फ्यूज्ड है, तो 1 और यहाँ पर 1 2, इस तरह से नंबर नहीं लिखते हैं, ये काउंटिंग के लिए आपको मैं दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 1 तो सिंगल है और 9 क्या है, फ्यूज्ड है। तो 1 ये बन गए 9 स्टेमन, बट इन्हें आप फ्यूज शो करेंगे तो इस तरह से ये फ्यूज्ड हो और ये सिंगल रह गया, तो 1 + 9 रहेंगे। अब आउटसाइड द एंड्रोशियम ड्रॉ करेंगे पेटल्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल यानी कोरोला। तो कोरोला में कैसा था एस्टिवेशन, 1 तो जो लार्ज पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स, ये सेंटर में आना चाहिए जो एक्सिस है। ये हो गए एंटीरियर कील विच आर फ्यूज्ड, ये हो गए लेटरल विंग्स and this is standard, no need to label it. And last is outside the sepal, outside the petal is sepal present and number of sepal is 5, but in किस टाइप के एस्टिवेशन में, इम्ब्रिकेट। पहले हम 5 हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ देखिए 1 तो क्या है, कंप्लीटली इनसाइड, ये क्या है, ऑल्टरनेट। and 1 is completely outside. यहाँ इस एप्पल्स को हम ग्रीन कलर यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। Here you can see imbricate estivation in sepals. One is inside, one is completely outside, and other margin of sepals are alternate, inside, outside, inside, outside, inside, outside. So this type of estivation is called imbricate estivation. And petals के लिए कौन सा estivation है, vexillary. Vexillary is found only in Fabaceae. तो आप ये भूल नहीं सकते हैं कि Fabaceae में कौन सा estivation होगा। तो ये है फ्लोरल डायग्राम। Okay student, thank you. In next video we will describe about Solanaceae family and Liliaceae family. Thank you.